Multiple choice questions of chapter pair of linear equations in two variable. Okay. Now the question number 1 is, if under root ax minus root b by equal to b minus a and root bx minus root a by equal to 0, then xy equal to. So first we have to find the what is the xy. Okay. So first find xy by the substitution method. The equation number 2 is root bx equal to root a y. Okay. So x equal to under root a upon under root b by. Just put in the first equation root ax minus root b by equal to b minus a. Okay. Just put x equal to this. It means root a into root a by upon root b minus root b y equal to b minus a. Take y common and solve. It is a minus b upon root b equal to b minus a. Take minus 1 common and cancel. तो we get y equal to minus root b. यहाँ से minus 1 कॉमन ले लेंगे तो a minus b हो जाएगा. काटेंगे minus 1 multiply minus and just put in the x equal to root a upon root b into minus root b. It means it is equal to minus root a. Now product of x y इन दोनों का multiply क्या होगा? root a into root b. It means root ab. So which option is right? A plus b, a minus b. It is root ab. Okay. Next question number 2. The system of linear equations x equal to 3y plus 5 and 9y equal to 3x minus 15 is consistent, inconsistent, consistent but dependent, and inconsistent but dependent. Okay, so now see the ratios. This equation is x minus 3y minus 5 equal to 0. And convert this 3x minus 9y minus 15 equal to 0. Yani this equation has the a1 upon a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. It means this equation is consistent but dependent. Why dependent? Because too many solutions coincide. इनके बहुत सारे solutions एक दूसरे से coincide करेंगे, इसलिए consistent है, many solution. Next, 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago. His present age is, देखिए 15 साल बाद एक आदमी 4 टाइम्स 4 गुना होगा किसका? जो 15 साल पहले था. मान लो अगर सपोज ये आदमी x है तो 15 इयर्स के बाद कितना होगा? x प्लस 15 और वो 4 टाइम्स है जितना कि वो 15 साल पहले था. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 4x माइनस 60. सब्ट्रैक्ट 4x माइनस x कर देंगे इधर ले जाके और ये हो जाएगा 60 प्लस 15 is 75. 3x equal to 75 means x equal to 25. Okay. The right answer is 25 years. Okay. Next, the value of k for which the system of equation kx plus 2y equal to 5 and 3x plus 4y equal to 1 has no solution. Okay. So we know that the condition for no solution is a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. Okay. So now k upon 3 equal to 2 by 4. Cancel by 2. It is k equal to 3 by 2. Simple question. आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कैसे करना है. तो राइट ऑप्शन हो गया इसका D 3 by 2. Next, if a pair of linear equations is consistent, then the lines will be consistent means solution आएगा, many आए चाहे यूनिक, ये भी consistent होता है और यहाँ लाइन कट करती है, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो पैरेलल तो नहीं हो सकती, हमेशा कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकती. इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट एंड ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी. या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी आपस में यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द वैल्यू ऑफ a
so that the point 3a lies on the line represented by 2x minus 3y equal to 5. Okay, 2x minus 3y equal to 5. Just put x equal to 3 and y equal to a. It means 2 into 3, 6, minus 3 into a equal to 5. Minus 3a equal to 5 minus 6 minus 1. A equal to 1 by 3. So which option is right? B option is right. A equal to 1 by 3. Next, question number 7. The value of k so that the line 2x minus 3y equal to 9 and kx minus 9y equal to 18 would be parallel. देखिए, पैरेलल होने के लिए वही कंडीशन अभी बताए थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. हमको क्या करना है? a1 अपॉन a2, इट मीन्स 2 बाई k इक्वल टू माइनस 3 बाई 9. माइनस 3 बाई माइनस 9, बोथ आर माइनस. देन k इक्वल टू कैंसिल, 3 to the 6, k equal to 6. The right option is A, k equal to 6. Next, the pair of equations y equal to 2 and y equal to 7 has. अब देखिए, y equal to 2 वैसे तो मुझे पता है पैरेलल होगा. देखिए, y equal to 2 की लाइन जा रही है और ये y equal to 7, तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन. ये कह रहा 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. यस, नो solution. This is the right answer. Now question number 9. Question number 9 है, one equation of the line which is parallel to root 2x minus root 3y equal to 5 is. अब इनमें से देखना है कौन सी इक्वेशन इसमें अप्रोप्रिएट लगेगी. ठीक है, तो इन पैरेलल के लिए कंडीशन हमको वही देखनी है कि दोनों का रेशियो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, लेकिन c1 बाई c2 जरूरी नहीं है बराबर हो. ठीक है, तो a1 बाई a2, अब यहां से देखेंगे a1 बाई a2 सब में रूट टू आ रहा है. b1 बाई 2 ये माइनस है, तो प्लस वाले तो नहीं आंसर आ सकते. इन दोनों में से ही कोई होगा, क्योंकि दोनों में रेशियो सेम होना चाहिए. और तीसरा है 5 इक्वल टू 5 और यहाँ पर है 5 1, तो यानी यहाँ रेशियो सेम नहीं है. 5 बाई 1 सेम नहीं है, ये रेशियो दोनों सही है. a1 अपॉन a2 ठीक है, रूट 2 बाई रूट 2, b1 बाई b2 भी ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो विच ऑप्शन इज राइट? C. Okay. In the next question, if the system of equations 2x plus 3y equal to 7 and a plus b into x plus 2a minus b equal to y equal to 21 has infinitely solution, then the value of a and b are. ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों रेशियो सेम होंगे. तो हम लोग पुट करके देख सकते हैं. अगर डायरेक्ट अगर उल्टा करना है, हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं a इक्वल टू 5 1 और 5, या 1 और 5 रखेंगे 6, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 बाई 3. और फिर यहां रख के देखेंगे 2 माइनस 5, यानी ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि रेशियो 3 और इसके होना चाहिए. फिर इसको पुट करके देखेंगे, इसको चारों को डाल के देख लेंगे कि कौन से रेशियो सेम हो रहा है, क्योंकि यहां से 7 बाई 21 1 बाई 3 रेशियो हो रहा है. तो हम लोग 5 और 1 डालेंगे 6, तो ये हो जाएगा 1 बाई, लेकिन हमको देखना है y का. अब यहां देखिए 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 5 माइनस 1 10 9y हो जाएगा अगर ये 5 और 1 रखते हैं तो. और ये हो जाएगा 6x, और प्लस है ही है, तो यहाँ 7 इंटू, तो सब में रेशियो 1 बाई 3 आ गया, यानी ये ऑप्शन सही होगा. और नहीं तो सॉल्व करने का तरीका फिर वही है जो हम लोग करते हैं, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस बी इक्वल टू 7 बाई 21. यहां से 1 बाई 3 लेके एक इक्वेशन इधर से बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन यहां से फिर सॉल्व करेंगे, तो आंसर यही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय कोफिशिएंट फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट मीन्स मैनी सॉल्यूशन. सबसे पहले ये सोचना है कोइंसिडेंट यानी मैनी सॉल्यूशंस हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0. ओके, तो नाउ देखेंगे मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा? रेशियो सेम होगा, यानी a अपॉन डी, b अपॉन ई इक्वल टू सी अपॉन एफ. अब यहां से देखिए ए ई इक्वल टू बी डी किस में लिखा हुआ है? ए ई इसमें नहीं है, ए ई बी डी यहां लिखा है और इसमें नहीं है, इसमें, यानी इन दोनों में से कोई हो सकता है.
अब तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, BC, ठीक है। तो BC कहाँ है, BC इंटू नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो सकता है, EC इक्वल टू BF, B इंटू F C, यानी कौन सा, इन दोनों में से ये नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन इज D, ठीक है। पहले इससे देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ सकते हैं इन दो में से, फिर इन दोनों का लास्ट वाला देखेंगे कि कौन सा मल्टी, B इंटू F इज इक्वल टू C, यानी D ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, if fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction। वो कह रहा है कि अगर 1 माइनस कर दें न्यूमरेटर से, ठीक है, तो ये 1/3 हो जाता। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस करके 3/11 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। देखिए 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/12, यानी ये 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब MCQ सॉल्व करते हैं तो हम लोग उल्टा आंसर भी लगा के देख लेते हैं, 4/12 इट इज 1/3। ये हो नहीं सकता, ये बड़ा है, और ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 - 1 0। तो राइट ऑप्शन तो मुझे यही मिल गया। लेकिन अगर हम इसको और भी चेक कर सकते हैं, 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी इसमें 8 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, क्योंकि आगे भी चेक कर लेंगे। तो ये 20 हो गया, 5 4 जा 20, यानी इट बिकम्स 1/4, यानी B ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। आपको पता है नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स B ऑप्शन इज राइट। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लाइन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल, नन ऑफ दीज। यस, इंटरसेक्टिंग कैसे होगा, देखिए अगर आप ग्राफ में x इक्वल टू 2, ये x यहाँ 2 है, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू 3 कहाँ से आएगा, 1 2 3, ये y है, ये y इक्वल टू 3 है, तो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो यस, इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट, विच मेथड विल बी सुटेबल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन एंड ग्राफिकल। देखिए ग्राफ तो इतने बड़े का हम नहीं बना सकते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो बहुत बड़ी डिजिट है, इनको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सब्स्टिट्यूशन में भी अगर x इक्वल टू पुट करें 253 - 37//71, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग को इसको किससे सॉल्व करते हैं, इलिमिनेशन से। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 71 + 37 कितना होगा, 108 x 108 y। इस तरीके से एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना होगा, 550। अब हम लोग 108 कॉमन लेके काट देंगे 540 को, तो कितना आ जाएगा, 5। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 11 - 7 4, 34x - 34y, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आएगा 4 - 34, यानी इक्वेशन अगर कॉमन ले लें 34, तो क्या आ जाएगा, x - y = -1। अब इजी है इसको सॉल्व करना, तो कौन से मेथड से हम लोग यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging its digits exceeds the given number by 18. What is this number? अब यहां भी हमको इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर उल्टा सोचेंगे। देखिए सबका डिजिट का सम तो 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना है कि डिजिट को रिवर्स करके कौन सा 18 बढ़ता है। ये 84 होगा, जब रिवर्स करेंगे तो 84 - 48 कितना होगा, 48 माइनस करेंगे, 14 - 8 6 30, नहीं ये 48 है, ये तो कम हो गया। ये कितना होगा, 57। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 57, 15 - 7 8, ये 18 बढ़ रहा है, और ये 75, ये तो नेचुरली ज्यादा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 75। कैसे चेक किए कि वो कह रहा है कि अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो मेरा नंबर 18 ज्यादा हो जाता है। तो हमने क्या किया, सबका डिजिट को रिवर्स करके देख लिया कि डिफरेंस 18 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर इज, राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 18 ज्यादा हो रहा है, यानी ये वाला होगा। ये 57 तो कम हो जा रहा है ना, ये होगा 57। क्यों,
क्योंकि ये 75 हो गया ना, ये बढ़ गया 18, वो कह रहा है रिवर्स करने पर बढ़ जाता है 18, तो राइट ऑप्शन इज 57, इसमें घट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3x minus 2y plus 3 equal to 0 and 4x plus 3y minus 47 you get x upon, देखिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जाएंगे। ये है 3x minus 2y plus 3 equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x plus 3y minus 47 equal to 0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग x अपॉन y ऐसे करके सॉल्व करते हैं, तो हमको सिर्फ x अपॉन चाहिए, तो x अपॉन चाहिए तो इसको इलिमिनेट करते हैं, यहां से लिखते हैं -2 3 और ये लिखते हैं 3 माइनस 47, ठीक है। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 47 इंटू 3 47 इंटू 2 94 माइनस 3 इंटू 3 9, इट इज 85, यानी x के नीचे क्या आएगा 85। वो ये पूछ रहा है कि x के नीचे हम लोग क्या पुट करेंगे। ऐसे ही अगर y के नीचे पूछा जाता तो हम लोग क्या लिखते y के नीचे, देखिए y के नीचे लिखेंगे 3 माइनस 47 और इधर से लिखेंगे 3 4, फिर वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 माइनस 47 प्लस 3, तो y के नीचे आएगा ऐसे ही 1 के नीचे। नेक्स्ट 18, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 7x माइनस y इक्वल टू 5 एंड 21x माइनस 3y इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट द टू लाइन्स विच आर। अब हमको देखना है पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो रेशियो देखेंगे 7/21 -1 अपॉन -3 एंड थर्ड इज 5/10। ये दोनों का रेशियो 1/3 है, लेकिन ये है 1/2, यानी ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो लाइन्स क्या होती हैं पैरेलल, तो द राइट ऑप्शन इज पैरेलल। ओके, next 19 number question, if a pair of equations is consistent then the lines will be consistent है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक है, ये पहले भी आया, थोड़ा सा चेंज था। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू -4 y इक्वल टू -4 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर एट, देखिए x इक्वल टू -4 किस साइड जाता है, इस साइड जाता है, माइनस नंबर इधर होते हैं, प्लस -1 -2 -3 एंड -4। x इक्वल टू -4 की लाइन ये होगी एंड y इक्वल टू -5, यहां सपोज माइनस आएगा क्योंकि नीचे माइनस होता है और ये प्लस, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y। तो कहां पर कोइंसिडेंट करेंगे -4 -5, इंटरसेक्टिंग एट -4 -5। Okay, the right option is -4 -5. Okay, thank you. ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स ऑफ विच विल बी हेल्ड इन November December. Thank you.